Hello students, in this video we are going to do some exercise based on our previous concepts and teachings. Okay, we have already covered different points of common errors, approximately 24 and 25 common errors we have already discussed. Okay, and we did some questions also. Now we will do only 10 questions based on the last lectures teachings. Okay, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना। और इसके बाद से हम मूव करेंगे वोकैबुलरी पोर्शन पे, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 4 मेजर टॉपिक्स अभी रह गए हैं वोकैब पोर्शन में, ठीक है ना। तो अभी ये पूरा करने के बाद से हम स्विच ओवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इससे पहले की वीडियो है लेक्चर नंबर 22, उसको आप लोग एक बार देख लें, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द ऑप्शंस, ये सारे क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के लिए मैं बिना ऑप्शन के दे रहा हूं। सो कम टू द एक्सरसाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन। Neither Rohan nor his children dash interested in music. Question number second. The coach as well as the players dash signed the contract. Okay, third question. One must respect dash teachers. Question number 4. Ali is one of the best dash of our school. 5. No sooner had the bell rung dash the students rushed to their classes. Question number 6. Dash, dash and dash have been found guilty of theft. Question number 7.
Reshma along with her parents is watching a movie. Okay. Question number 8. Either John or his teammates dash responsible for this act. Okay, either John or his teammates dash responsible for this act. Question number 9. The number of widows dash increasing sharply. Question number 10. A number of criminals dash been acquitted. ठीक है ना? Now, you have to do it without any options. Let me read once again if you have any problem in reading these questions. The first question is neither Rohan nor his children dash interested in music. Yesterday in the previous lecture we studied the rule of neither and nor. If they are used as a conjunction for two subjects, the first subject is Rohan and the second subject is his children. So what should be the helping verb here? Okay, we studied it yesterday. Question number 2. The coach as well as the players dash signed the contract. Okay. Question number 3. One must respect dash teachers. Question number 4. Ali is one of the best dash of our school. We also studied the rule of one is always followed by ones. Okay. Not these ones, but these ones. Okay. We discussed this yesterday. Ali is one of the best. We studied the rule of one of the. Okay, one of the is followed by singular noun or plural noun. We know it. Okay. Question number 5. No sooner had the bell rung dash the students rushed to their classes. अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था. If you want you can do, otherwise skip it. We will discuss it after finishing it. है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया था. नो सूनर जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो उसके बाद एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है जो इस ब्लैंक में होना है. क्वेश्चन नंबर 6. डैश डैश एंड डैश हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट. अब हमने 2 रूल कल पढ़े थे, 1 2 3 रूल एंड 2 3 1 रूल. द रूल ऑफ प्रोनाउंस. ओके, 2 3 1 रूल मीन्स विच गिव्स अ सेंस ऑफ अफर्मेशन. नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम 2 3 1 रूल अप्लाई करते हैं. 2 3 1 मीन्स फर्स्ट, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. और 1 2 3 रूल हम अप्लाई करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए. 1 2 3 रूल, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. ठीक है. तो अब आप देखिए ये सेंस नेगेटिव है, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है इसको. ओके. क्वेश्चन नंबर 7.
रेशमा along with her parents dash watching a movie. ओके, यहाँ भी दो सब्जेक्ट्स हैं, रेशमा एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज हर पेरेंट्स, और बीच में कंजंक्शन क्या है, along with. तो कल हमने डिस्कस किया था when, along with, together with, as well as and with, they are used as a conjunction to join two subjects in a sentence. Then the helping verb must agree with. Now I'm not going to tell you. You have to do yourself. Either John or his teammates dash responsible for this act. Again either or. ठीक है ना? Question number 9. The number of widows dash increasing sharply. The number of, we studied the rule of the number of and a number of. ठीक है ना? कहाँ the number of यूज होता है और कहाँ a number of यूज होता है, वो आपको देखना होगा. ठीक है. Question number 10. A number of criminals dash been acquitted. A number of. अब a number of, the number of, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स का सिलेक्शन होना है. ठीक है. You have only 2 minutes. Just pause the video and try to solve yourself. Okay, मैं तो सॉल्व करने के लिए हूं यहां पर. Just 2 minutes. Okay guys, let's discuss. The first question, neither Ram nor his children dash interested in music. The right answer is R. Verb भी हो सकता है. Neither Rohan nor his children were interested in music. Verb भी हो सकता है. याद रखिए, जहां पॉसिबिलिटी आर की है वहां वर्ब की भी है पॉसिबिलिटी. ठीक है ना? वर्ब भी हो सकता है यहां पर. लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है और बोथ ऑप्शन नहीं है, एक तीसरा ऑप्शन, तो हम इसको प्रीफर करेंगे. सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि आप शुरुआत करते हैं प्रेजेंट से. प्रेजेंट में पहले पॉसिबिलिटी देखिए, उसके बाद पास्ट में जाइए. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2. The coach as well as the players dash signed the contract. As well as ये एक कंजंक्शन है, तो हमने पढ़ा था as well as, together with, along with and with. अगर ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किस पे एग्री करता है, फर्स्ट पे. तो द कोच ये हो गया फर्स्ट, तो इसके लिए अब यूज होगा यहां हेल्पिंग वर्ब. The coach as well as the players dash signed the contract. The coach as well as the players has signed the contract. Question number 3. One must respect. अब ऑप्शन में दिया होगा his, her, theirs, one's, etc. तो रूल हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है. जब कभी भी वन आएगा यहाँ पे, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे one's होगा. One must respect one's teachers. Ali is one of the best. One of the best. One of the best के बाद कभी भी प्लूरल नाउन का यूज होता है. मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. सचिन is one of the best players of the world. विराट कोहली is one of the best cricketers of the world. Mr. John is one of the best teachers of our school. One of the best teachers. Okay? So Ali is one of the best. अब यहाँ कुछ भी हो सकता है. स्टूडेंट्स भी हो सकता है, ओरेटर्स भी हो सकता है, प्लेयर्स भी हो सकता है. अब ये स्कूल मेंशन किया गया है तो यहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए, या प्लेयर्स भी हो सकता है. तो ये याद रखना है कि ये प्लूरल होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी स्किप करते हैं. अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया है, अभी अच्छा हुआ याद आ गया. क्वेश्चन नंबर 6. डैश डैश एंड डैश हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट. अब ये एक नेगेटिव सेंस है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट. आप गुनहगार साबित हो गए, आपके खिलाफ जो भी एलिगेशन है वो प्रूव हो गए. ओके,
तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंस है, और हमें पता है नेगेटिव सेंस के लिए हम कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, 1, 2 and 3 पैटर्न। तो ये क्या होगा, आई यू। अब यहां पे ही शी भी हो सकता है या किसी का नाम भी हो सकता है। 1, 2, 3 रूल जब अप्लाई करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 में बेसिकली क्या होता है, मैंने टेंस में भी बताया था कि अगर किसी का नाम है जैसे रोहन, जॉन, दिनेश, कैथरीन, तो नाम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ट्रीट होता है। अब यहां बात हम सिंगुलर प्लूरल की नहीं करते हैं, ये पर्सन की बात करते हैं, फर्दर हम डीप में नहीं जाते हैं। ये थर्ड पर्सन के बदले में हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं या ही शी भी चलेगा, लेकिन इट नहीं आएगा, इट पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। यू, आई, यू एंड Ali have been found guilty of theft. Okay. Question number 7. Reshma along with her parents dash watching a movie. Reshma along with her parents is. क्यों? क्योंकि along with यहाँ यूज हुआ है, जब ये यूज होगा तो यहाँ पे helping verb फर्स्ट सब्जेक्ट यानी रेशमा के अकॉर्डिंग यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8. Either John or his teammates dash responsible for this act. यहां आइदर और आ गया, मैंने पहले बताया था आइदर और नाइदर नॉर, है ना। जब ये यूज होते हैं किसी सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे पहला वाला है। सो आइदर जॉन और हिज टीममेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। द नंबर ऑफ widows dash increasing sharply. The number of is always followed by singular helping verb. The number of widows is increasing sharply. Question number 10. A number of criminals have been acquitted. A number of is followed by plural helping verb. तो यहां क्या आएगा, have been acquitted. Clear? So this way we have finished the chapter of common errors. We have done exercise also. Now let's discuss question number 5. This is very important. Questions are often asked on this concept. No sooner had the bell rung than the students rushed. यहां पे एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, than. ओके, पॉइंट जो भी आपने लिखा हुआ है, पॉइंट जो जितने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक 25 और 26 है। 26 में लिख लीजिए नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन। नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन। जब भी किसी सेंटेंस में नो सूनर का यूज होगा, नॉर्मली पहले यूज होता है शुरू में, तो उसके बाद दैन का यूज कंपलसरी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। नाउ we'll start next chapter, that is one word substitution. मैंने पहले बताया था कि ग्रामर में बेसिकली दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन होता है कोर ग्रामर, जिसमें हम टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशंस एंड कॉमन एरर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लुक हियर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, antonyms, synonyms and idioms and phrases. We have 4 major topics in this section. Okay, one word substitution, antonyms, synonyms and idioms and phrases. Okay, 2 to 3 questions, 3 to 4 questions, 2 to 3 questions, 3 to 4 questions. Okay. So it counts 12 to 14 questions from these sections. Okay. और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सेक्शन की वो ये है कि इनमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपको मेमोराइज करना होगा और याद करना होगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उसको रट जाइए आप लोग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहाँ होती है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन 90-95% स्टूडेंट्स स्किप करते हैं इसको। जैसे अगर 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में दोनों से, तो स्टूडेंट्स 3 to 4 कर पाते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। और करना भी चाहिए क्योंकि वर्ड्स की लिमिट बहुत ज़्यादा है। देयर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स। आप सबको याद नहीं कर सकते। अगर आप याद करते भी हैं तो उसको दूसरे दिन भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आप इन दोनों को लेकर के पैनिक ना हुआ करें। जितने वर्ड्स आपको पता है दैट्स गुड। कुछ वर्ड्स आप जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट टू द ऑफिस, यू मे गेट इट। बहुत सारे क्वेश्चंस उस लिस्ट से आते हैं, इस लिस्ट ऑफ 300 to 400 वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली या डेली यूज में आते हैं वर्ड्स। तो इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लाखों वर्ड्स हैं हमारे डिक्शनरी में, तो अब किसको किसको याद करें, है ना। तो जो चीज़ श्योर शॉर्ट है, जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं आपको स्कोर करने का, जैसे कोर ग्रामर, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव, नरेशन, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बताया है, ठीक है। कॉमन एरर्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे नाउ यू कैन डू इट इजीली, ठीक है ना। और इन दोनों में, चारों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ बिट ईजियर, थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको भी इसको भी याद करना होगा। एटलीस्ट 300 to 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको जहन में रखना होगा। idioms एंड phrases अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस, है ना। तो पहले हम कवर करेंगे इन दोनों को, उसके बाद हम आएंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पे, ठीक है ना। कुछ वर्ड रूट्स मैं बताऊंगा, कैसे वर्ड रूट की हेल्प से हम पता करते हैं कि क्या इसका मीनिंग होना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन, वोकैबुलरी, एंड दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। That is one word substitution. One word substitution. Okay, firstly I'm going to write down substitutions and one by one I will explain it. So better you must have pen and copy. जब मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो आप उसको लिखते जाएं। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरे वर्ड्स को यहाँ लिखूं उसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखूं। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको लिखते जाएंगे। Hi students, let's go through the common substitutions. I haven't written the whole sentence. Instead, I have written
some of the substitutions which are used in place of a sentence or a group of words. ठीक है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बदले में एक वर्ड. जैसे अगर मैं ये कहूं द स्टडी ऑफ साइंस. स्टडी ऑफ साइंस तो बहुत सारे स्ट्रीम्स हो गए. द स्टडी ऑफ प्लांट्स. द स्टडी ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या हुआ? बॉटनी. द स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट इज जूलॉजी. जैसे अगर मैं ये कहूं कि अ लेडी हुज हस्बैंड इज डेड या अ मैन हुज वाइफ इज डेड. ठीक है ना, लेडी. अगर कोई ऐसी औरत है जिसका हस्बैंड मर गया हो तो हम क्या बोलते हैं उसको? विडो बोलते हैं. ओके. मेल को क्या बोलते हैं अगर उसकी वाइफ मर गई हो? विडोवर बोलते हैं. ठीक है ना. अ पर्सन, मेल और फीमेल, हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्जुगल मैरिज. जो अपने कॉन्जुगल कोर्टशिप रिलेशनशिप से अलग हो गई हो या अलग हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं? अगर लड़की है तो डाइवोर्सी बोलते हैं. डाइवोर्स हो गया उनका. दोनों के लिए डाइवोर्सी का ही वर्ड यूज होता है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने बताया आपको कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए या एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं. एक्चुअली दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. वी हैव कलेक्शन ऑफ 30 वर्ड्स. ये किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है. ऐसे तरह के लोग होते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है, तो उनको क्या बोलते हैं. ठीक है ना. नाउ कम टू द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज गैरुलस. अब आपको करना क्या है कि जब भी मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जैसे ये पेज है आपका, जस्ट मेक श्योर यू हैव पेन एंड कॉपी. ठीक है. तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस वर्ड को यहां लिख लें और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिख लें यहां पर. ठीक है ना. या आप ऐसा करें कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं पहले उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लें, उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन यहां लिखने के बाद यहां पे ये वर्ड लिख लें. आ रही बात समझ में? यू हैव टू ऑप्शंस. या तो इसको लिख लें पहले आप, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखें, या अगर एक्सप्लेनेशन पहले लिखना हो, सेंटेंस पहले लिखना हो, तो वो लिख करके उसके बाद ये लिख लें. ये ज़्यादा बेटर होता है ना. नाउ कम टू द पॉइंट. वेरी इंटरेस्टिंग. गैरुलस. गैरुलस मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स मच, हु टॉक्स अ लॉट. एक ऐसा आदमी, मेल फीमेल दोनों के लिए, जब पर्सन का यूज होगा तो मेल फीमेल दोनों. A person who speaks too much. ठीक है ना. उसको हम क्या बोलते हैं? गैरुलस. ओके. एक और वर्ड आता है वर्बोज. एक और वर्ड आता है टॉकेटिव. ठीक है ना. 3 वर्ड्स आते हैं इसके साथ, वर्बोज, टॉकेटिव, गैरुलस. तीनों का मतलब एक ही होता है कि एक ऐसा आदमी जो ज्यादा बोलता हो. ठीक है. कम टू सेकेंड वन, रेटिसेंट. वन हु टॉक्स लेस. जो चुप्पे लोग होते हैं, बहुत कम बोलते हैं. यस, नो, सिर्फ इतना बोलते हैं, हाँ ठीक है. ऐसे लोग जो फितरी तौर पे, मतलब जिनका मतलब नेचर ही ऐसा होता है कि वो कम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट. नाउ कम टू थर्ड वन, फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स वन हु हेल्प्स ह्यूमन काइंड. ये 2 वर्ड से बना है, फिल एंथ्रोपोस. फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स. वन हु लव्स ह्यूमन बीइंग्स, है ना. वन हु हेल्प्स अदर ह्यूमन बीइंग्स. जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिल गेट्स या अजीम प्रेमजी. ठीक है ना. ये लोग क्या करते हैं? चैरिटी में बहुत पैसे डोनेट करते हैं. तो न्यूज़पेपर में जब इनका न्यूज़ आता है, जब डिस्प्ले होता है, तो ऐसे लिखा होता है कि बिल गेट्स इज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट. ओके. अजीम प्रेमजी हैज डोनेटेड 1000 crore rupees as charity. This is a philanthropic act. Philanthropic act मतलब humanistic act.
ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा वन हु हेल्प्स, वन हु लव्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप, अब इसका अपोजिट है मिज़ेंथ्रोप। मिज का मतलब होता है हेट, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, मतलब जो आदमी दूसरे आदमियों से नफरत करता है। मिज़ेंथ्रोप, वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, मतलब उसको इस आदमी से नफरत है, ठीक है ना। हालांकि वो खुद भी एक आदमी है, लेकिन जो दूसरों से नफरत करता है उसको लोग पसंद नहीं है, ऐसे लोग क्या बोलते हैं, मिज़ेंथ्रोप। नाउ कम टू ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन मीन्स वन हु ईट्स टू मच, ऐसा आदमी जो बहुत खाना खाता हो, इसको हम स्लैंग में पेटू बोलते हैं या जो भी है व्हाटएवर। वन हु ईट्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा जो खाना खाता हो, होता इंसान ही है, जानवर के लिए यूज़ नहीं होता है। एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो उसको हम बोलते हैं ग्लटन। ओके, नाउ कम टू 6, थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। 7th, एथीस्ट। एथीस्ट मीन्स वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं रखता उसको हम क्या बोलते हैं, अथीस्ट, नास्तिक। थीस्ट क्या है, आस्तिक। एथीस्ट क्या है, नास्तिक। एग्नोस्टिक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, एग्नोस्टिक, बड़ा बहुत अच्छे से एंजॉय करके आप लोग पढ़ें इसको, एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक जो है वो थीस्ट भी है और एथीस्ट भी है। वो कैसे, ये बीच वाले लोग होते हैं, ये कभी कभी खुदा को मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते हैं, ठीक है ना, ये बीच वाले लोग हैं एग्नोस्टिक। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड एंड नाइदर डिनाइज हिज एग्जिस्टेंस, मतलब एक ऐसा आदमी जो गॉड में यकीन भी रखता है लेकिन उस पर भरोसा भी नहीं रखता, इसको क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। नाउ पॉलीथीस्ट, पोली का मतलब होता है ज्यादा, मेनी, है ना, पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है, थीस्ट मतलब गॉड, थियोस से बना है ये, थीस्ट। पॉलीथीस्ट मतलब वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जैसे इन इस्लाम वी बिलीव इन वन गॉड, ओके, बट इन हिंदुइज्म मोस्ट ऑफ आवर हिंदूज फेलोज दे बिलीव इन मेनी गॉड्स, रामा, कृष्णा, शिवा, गणेश, तो दे आर गॉड्स इन देयर माइथोलॉजी, ठीक है ना, और इन सारे गॉड्स में वो बिलीव करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, पॉलीथीस्ट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स वन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेट, वन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेट, डेट मतलब उधार, ऐसा आदमी जो अपना उधार चुकता ना कर पा रहा उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। नाउ कम टू बेलिकोज, बेलिकोज मीन्स वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, वन हु हैज टेंडेंसी टू फाइट, जो लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं उनको हम बेलिकोज बोलते हैं, मीन्स व्हाट, झगड़ालू। नाउ मिसोजेनिस्ट, मिसोजेनिस्ट, अब ये देखने में ऐसा लग रहा है मिसोगाइनिस्ट है ये, बट ये इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है मिसोजेनिस्ट, वन हु हेट्स विमेन। गायनी किससे बना है, इसका मतलब होता है वुमेन, ठीक है। मैं वर्ड रूट्स पे बताऊंगा आगे, ये क्लास फिनिश होने के बाद से। मिसोजेनिस्ट मीन्स वन हु हेट्स विमेन, मतलब औरतों से नफरत करने वाले, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर खास प्रजाति के मर्द होते हैं जिनको औरतों से बहुत नफरत होती है, कुछ उनके साथ ऐसे हादसे हुए होते हैं, कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स हुए होते हैं, या कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको औरतों से नफरत हो जाती है, हालांकि नहीं होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर्स ऑफ गॉड, ओके, वी मस्ट रेस्पेक्ट एंड लव विमेन, ओके। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट, दोनों में फर्क है, ये गैमिस्ट है, ये जेनिस्ट है, मिसोजेनिस्ट, ये गैमिस्ट है। गैमिस्ट बना है गैमोस से, गैमोस का मतलब आता है मैरिज, मिसोगैमिस्ट का मतलब वन हु हेट्स मैरिज, मतलब जो आदमी इस कैटेगरी में मर्द भी आते हैं, औरत भी आते हैं, मतलब ऐसे लोग, ऐसे मर्द या ऐसी औरतें जो शादी नहीं करना चाहते, जिनको शादी से नफरत है। मिसो का मतलब होता है हेट, मिस का मतलब हेट,
जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा मिज़ेंथ्रोप, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमंस, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमंस, और ह्यूमंस में मर्द और औरत दोनों आते हैं। मिजोगैमिस्ट का मतलब वन हु हेट्स मैरिज, वन हु डजंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिनको मैरिज में बिलीव नहीं है, जो शादी करना ही नहीं चाहते, शादी से अजीब एलर्जी है उनको। सॉट, SOT, सॉट, सॉट मीन्स वन हु ड्रिंक्स अ लॉट, ड्रंकार्ड, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला इंसान। ये मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला इंसान को क्या बोलते हैं? सॉट। टीटोटलर, टीटोटलर वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिज्म। अब जैसे आप लोगों ने सुना होता ना कि भाई ये बहुत पीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं या जूस पीते हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। आ रही बात समझ में? पीने का मतलब तो कुछ भी पीना, पानी भी पीना, लेकिन ये जो वर्ड है पीना, गाना है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, तो ऐसा नहीं है मुझे जूस पीने का शौक नहीं या दूध पीने का शौक नहीं, शराब पीने का शौक नहीं, ठीक है। सॉट वन हु ड्रिंक्स, यानी वन हु इज अल्कोहलिक, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला इंसान। टीटोटल का मतलब वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिज्म, यानी जो आदमी शराब नहीं पीता है। आइडोलेटर, आइडोलेटर का मतलब होता है वन हु वर्शिप्स आइडल्स, मूर्ति पूजा। जैसे इन हिंदू रिलीजन, हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे वर्शिप आइडल्स, मतलब मूर्ति की पूजा होती है, उसको हम बोलते हैं आइडोलेटर। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट इज अ वेरी नाइस वर्ड, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिविटी, वन हु इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मक सोच, ठीक है ना, जो अच्छा सोचता हो, जो किसी भी तकलीफ में हो लेकिन पॉजिटिव अप्रोच रहता है। नेगेटिव थिंकिंग इसके लिए यूज होता है पैसिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जिसको हमेशा होप नजर आता है, उम्मीद नजर आती है। लेकिन ये पैसिमिस्ट हैं, बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, इनसे बचना चाहिए, ये होपलेस कर देते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वन हु बिलीव्स इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों की अच्छाई करने वाला, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। अब जैसे दो लोग हैं, ए और बी, अब कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, थेफ्ट होता है, रॉबरी होती है, बर्गलरी होती है, या ऑर्गेनाइज मर्डर होता है, ऑर्गेनाइज, जैसे आजकल लिंचिंग हो रही है, ओके, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। किसी बेगुनाह को पकड़ के उसको 10 लोग मिल के मार देते हैं, लिंचिंग है, दैट इज इलीगल एंड अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट पर्सन हु हैज बीन किल्ड और मर्डर्ड। तो अगर ये दो लोग मिलके कोई एक क्राइम करते हैं तो ये क्या हो गया, इसके अकम्प्लाइज हो गया। अकम्प्लाइज मतलब पार्टनर इन क्राइम। नाउ कम टू 21, somnambulist. Somnambulist means one who walks in dream while sleeping. बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपको पता होगा, घर पे किसी से पूछिएगा कि कुछ लोग नींद में चलते हैं, वो सच में चलते हैं, वो होते नींद में है लेकिन चलते हैं। ये कमरे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले के लोग जो छत पे सोते थे या मैदान में सोते थे, ये एक डिसऑर्डर है कि आदमी नींद में अपने आप चलने लगता है, वो चक्कर लगाएगा फिर आके सो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सोमनम्ब्यूलिस्ट। सोमनीलोक्विस्ट, आधे लोग इसके विक्टिम होते हैं। बहुत सारे लोग नींद में कुछ ना कुछ बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, जो जैसा दिन भर किया रहता है वो रात में नींद में करता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक बार सो रहा था, मैं ग्रामर पढ़ा रहा था नींद में, एज टोल्ड बाय माय ब्रदर। तो सोमनीलोक्विस्ट मतलब वन हु टॉक्स और वन हु स्पीक्स व्हाइल स्लीपिंग, नींद में कुछ बोलना। लिंग्विस्ट,
ये क्वेश्चंस कई बार, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, जो मैंने डेलिबरेटली लिखा है यहाँ पर, ये इनमें से आधे से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. सो ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं. ये आई थिंक लास्ट ईयर और सेकेंड द लास्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन इनमें से कोई एक आया था, लास्ट के लास्ट. लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, दोनों में फर्क है. अब देखते हैं क्या फर्क है. लिंग्विस्ट का मतलब वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज जानता हो. जानने का मतलब ये होता है कि बोल भी लेता हो, लिख भी लेता हो, समझ भी लेता हो, उसको हम लिंग्विस्ट बोलते हैं. इनफैक्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, जो कि यहां भी है, डिपार्टमेंट है. पॉलीग्लॉट, अब पॉलीग्लॉट का मतलब ये होता है, पोली का मतलब मेनी, ग्लॉट का मतलब होता है टंग, जबान. तो जबान किसके लिए यूज होता है? लैंग्वेज के लिए. कहते हैं ना इसकी जबान सीधी नहीं है, इसका मतलब नहीं कि जबान ऐसे टेढ़ी घूम रही है उसकी. जबान तो सीधी है लेकिन बोल सीधा नहीं पा रहा है. ठीक है ना, बोलते ना जबान संभाल के बात करो. मतलब क्या? स्पीक इन प्रॉपर लैंग्वेज. ओके, सो पॉलीग्लॉट का मतलब वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेज को बोल पाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट. 25 कंटेम्पररी, मतलब समकालीन, एक ही वक्त के. ठीक है ना, एक ही वक्त के. फॉर एग्जाम्पल अकबर एंड बिरबल वर कंटेम्पररी, मतलब एक ही साथ थे दोनों, कंटेम्पररी. वेटरन, वन हु इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो. वेटरन, वेटरन आर्टिस्ट, वेटरन थिएटर आर्टिस्ट नसीरुद्दीन शाह. ओके, वेटरन सिंगर कुमार सानू, मीन्स वन हु इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड. नोवाइस, वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड. नौसिखिया जिसको बोलते हैं, जो अभी अभी किसी प्रोफेशन में गया हो, इसको हम नोवाइस बोलते हैं. एमिकेबल, वन हु हैज फ्रेंडली नेचर, जो आदमी खुशमिजाज हो या उसका नेचर ऐसा हो कि वो किसी से दोस्ती कर लेता है ना, उसको हम बोलते हैं एमिकेबल. क्रेडुलस, अब दो वर्ड्स हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको आप लोग याद रखें. क्रेडुलस एंड क्रेडिबल. फॉर एग्जाम्पल ये दो लोग हैं, ए और बी. ये ए बी पर बहुत जल्दी, या किसी पर भी, सी पर भी या डी पर भी, किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेता है, किसी पे भी यकीन हो जाता है उसको, किसी पे ट्रस्ट कर लेता है. तो ये ए है. वन हु बिलीव्स इन अदर्स इजिली, एक ऐसा आदमी जो दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस. ये ए अब इन सब पे भरोसा कर लेता है आसानी से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रेडुलस. क्रेडिबल, मान लिया ये तीनों ए पर भरोसा करते हैं, एक ऐसा आदमी जिस पे हर कोई एतबार कर लेता है आसानी से. अ पर्सन हु इज ट्रस्टेड इजिली बाय अदर्स. अब ये तो दूसरी क्वालिटी हो गई. जैसे मैं किसी पे जल्दी से एतमाद कर लेता हूं, भरोसा कर लेता हूं, तो मैं क्रेडुलस हो गया, पहली बात. और मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मुझ पे बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, तो मैं क्या हो गया? क्रेडिबल हो गया. ठीक है, तो ये फर्क है दोनों. सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू इट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और भी सिलेक्टेड वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. इनको आप लोग नोट करिए, याद करिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं लास्ट ईयर्स के, उसको सॉल्व करिए. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.